Hello friends, this is Veer from Saraswati Classes, Narul, Ahmedabad. Friends, as we know that in standard 11, our third chapter journal entries are going on, and we have done so many journal entries questions over here. Now today we are going to take one more method which is quite difficult for students. It will going to be easy, but before then, when you are going to see this method first time, it will quite making you puzzled. See what is given. Still we have seen certain illustrations regarding cash discount and trade discount, but here we are going to see this kind of question where we see cash and trade discount, both the discounts over here in a single transaction. See what is given here. Purchase goods of 20,000 at 10% trade discount and 5% cash discount from Ramesh. Half of the amount, half means 50%. Half of the amount is to be paid in cash and remaining after 1 month. Now this statement is given to you, and right here ask you to give general entries regarding purchase of the goods. Now if we are purchasing goods from anywhere else, who is the giver? The giver is Ramesh. So basically, if their cash discount option is not given over here, so or discount option is not given over here, we will do simple transaction, like we are purchasing the goods from somewhere else. The entry will be purchase account debited. The giver who is given Ramesh account will be credited. But friends, here you have given trade discount and cash discount too. We have seen in the previous questions what is the difference between trade discount and cash discount, when trade discount is applicable and when cash discount is applicable. I have defined you earlier on regarding this one, cash discount and trade discount. But once again I will discuss with you. Trade discount is to be deducted in every transaction, whether it is cash transaction or credit transaction. Don't have any issue regarding that. But cash discount is a kind of discount which is to be calculated only in cash and bank transactions only. Means if the transaction is in the cash form or bank transaction form, then and then only we will deal with cash discount. Otherwise we are not going to discuss about cash discount. Right friends, here it is to be said half of the amount is to be paid in cash. आधी रकम जो है वो हमने कैश में पे कर दी है, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है फ्रेंड। देखो, गुड्स परचेस्ड ऑफ दैट इज 20,000 रुपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि टोटल अमाउंट जो प्रिंटेड प्राइस है उसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना। तो माइनस करते हैं, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 2,000। सो 20,000 में से 2,000 लेस करेंगे, इट इज 18,000। वो जो 18,000 आया दैट इज टू बी नोन एज नेट परचेज। तो आपकी नेट परचेज कितनी होगी? 18,000। अब उस 18,000 के ऊपर भी हम लोग कैश डिस्काउंट डील नहीं कर सकते, क्योंकि वी नो दैट कैश डिस्काउंट इज टू बी एप्लीकेबल ओनली इन कैश ट्रांजैक्शंस। सो उसने कहा हुआ कि हाफ अमाउंट इज टू बी पेड इन कैश। सो हम क्या करेंगे, इसको बाइफरकेट कर देंगे, दो टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, कैश एंड क्रेडिट। सो 50% अमाउंट जो है वो कैश बेसिस पर है, 50% अमाउंट जो है वो क्रेडिट बेसिस पर है। तो क्रेडिट कितना? 18,000 का 50% 9,000। किसका नाम आएगा? रमेश अकाउंट, बिकॉज रमेश इज गिवर। अब यहाँ मैंने क्रॉस किया हुआ, इसका मतलब ये होगा कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हमें कोई प्लस माइनस कभी भी करना नहीं है, सिंपल फंडा है। अभी कैश डिस्काउंट के अंदर दिया हुआ है 5%। सो हम 9,000 जो अपना अमाउंट है उसका 5% निकालते हैं, तो 9 5 is 45, 450 रुपीज इज टू बी नॉन एज कैश डिस्काउंट। अब 9,000 की जो अमाउंट हम पे करने वाले थे, समझो आप, वी आर परचेजिंग द गुड्स मीन्स वी आर going to give them or him some amount. Some means 50% amount we are going to give him. So he offer us a cash discount on certain amount paying to him. So हमने उसे क्या किया? 50% amount पे कर दिया। So 50% amount जो 9,000 है उसके ऊपर हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो 9,000 का 5% हमने निकाला तो 450 का डिस्काउंट मिल रहा है। मीन्स वी आर नाउ नॉट गोइंग टू पे हिम 9,000। हालांकि कैलकुलेशन 9,000 की डील की जाएगी, लेकिन एक्चुअली हमारी जेब से निकला कितना? तो 8,550 फ्रेंड्स, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसमें से कैश डिस्काउंट को लेस कर देंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फ्रेंड्स, ये जो कैश डिस्काउंट है ये हमारे लिए बेनिफिट है या एक्सपेंडिचर है? तो अगर हम
परचेज करने जा रहे हैं, एज ए कस्टमर हम लोग वहाँ जा रहे हैं और हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है, तो दिस इज अ बेनिफिट टू द फर्म, बेनिफिट फॉर अस, फॉर द कस्टमर। तो यहाँ हम कस्टमर ही हैं और रमेश जो है वो सप्लायर है, ठीक है। सो हमें यहाँ पर कैश डिस्काउंट मिल रहा है, सो वी आर इन द बेनिफिट कंडीशन, सो कैश डिस्काउंट विल बी ट्रीटेड एज इनकम, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट नाउ। अब ये चीज़ हमें समझनी है कि जब हम परचेज ट्रांजैक्शन की डील करते हैं तो परचेज ट्रांजैक्शन में परचेज को डेबिट करते हैं। जब हम जनरल एंट्री लिखेंगे ना, आपको एक सिंपल फंडा ध्यान में रखना है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू डील विद परचेज ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, हमेशा डेबिट में रखेंगे। परचेज इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है। तो परचेज को डेबिट रखना और उसके अलावा जो जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे हमने रमेश से परचेज किया है, सिंपली अगर कैश ट्रांजैक्शन का डील ही नहीं होता तो हम एंट्री कुछ ऐसे करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू रमेश अकाउंट क्रेडिट 18,000, बट हियर नाउ 18,000 में से हम 9,000 उसको पे कर रहे हैं, 9,000 बाकी है, मीन्स रमेश स्टिल डिमांडिंग सम मनी फ्रॉम अस। हाउ मच दे आर डिमांडिंग, ही इज डिमांडिंग 9,000 रुपीज स्टिल, राइट। वो हमारा अभी भी ड्यू है, हमारा ड्यू है, उसका तो क्या है लेना, आउटस्टैंडिंग लेना है। सो हमने कितना किया 8,550। बिजनेस में कैश आता है तो डेबिट करते हैं, हम तो परचेज कर रहे हैं मतलब पेमेंट दे रहे हैं, इफ वी आर गिविंग द पेमेंट मींस कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। साथ में कैश डिस्काउंट भी दे दिया, डिस्काउंट कितना है 450, ठीक है फ्रेंड्स। सो परचेज डेबिट किया, अदर सारे ट्रांजेक्शन मैंने क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड विद कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। फ्रेंड्स आपको ऐसे ही 5 to 10 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको घर पे ऐसे आपको कोई भी अमाउंट एज्यूम कर लीजिए, 20, 30, 40, 50 एंड कोई भी डिस्काउंट एज्यूम कर लो। आपको खाली क्या करना है, परचेज नाम चेंज करना है, अमाउंट चेंज करनी है, बाकी कैलकुलेशन तो पूरी ऐसे की ऐसे ही करनी है। इवन आपको जनरल एंट्री भी सेम ही आने वाली है। सो ऐसे क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क में आज के लिए। फ्रेंड्स इतना ही, आई होप आप लोगों को ये जनरल एंट्री समझ में आई होगी। दिस इज वेरी important kind of journal entry which is to be asked in the examinations, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ साथ के साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस गुड डे।